यस, सो टाइफॉइड इज अ कॉमन डिसीज, राइट? सभी को पता है, सभी ने Yes, so we are studying the disease typhoid. Typhoid is nothing but causes infection to intestine. It is caused due to the pathogen which is known as Salmonella typhi. Remember this name. It is a gram-negative bacteria and it is found in intestinal lumen of infected pathogen. तो ये Salmonella typhi ये क्या है? It is a gram-negative bacteria. It is a type of bacteria, harmful bacteria है. ग्राम नेगेटिव क्यों बोला जाता है? बिकॉज बैक्टीरिया को कैटेगराइज करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए एक स्टेनिंग मेथड होता है जिसे बोला जाता है ग्राम स्टेनिंग. So some of the bacterias they stain positive whereas others they stain negative and accordingly they are given the names. So Salmonella typhi is a type of bacteria which is a gram negative bacteria and it is found in intestinal lumen of infected person. जिनको infection हुआ है typhoid, the people who are suffering from typhoid, in their intestine this bacteria it is present. Okay, pathogenicity is due to O antigen, a lipopolysaccharide LPS. Underline this also. ये pathogenicity means why this bacteria is pathogenic, why it is harmful, because of presence of O antigen. तो ये स्ट्रक्चर है सैल्मोनेला टाइफी का. मार्केट इम्पोर्टेंट, ये जो स्ट्रक्चर है ये बोर्ड्स में पूछा गया था. ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ सैल्मोनेला टाइफी. So this is a very small short diagram but students they ignore such diagrams and hence there are chances of losing marks. So this diagram can be asked for 2 marks. Okay, so this is important, you have to draw this diagram. एक बार draw कर दो इसे and remember the labelings. So what you observe here, labelings, this is a bacteria. This bacteria is covered by a capsule and the capsule is made up of K antigen. जो कैप्सूल है बैक्टीरिया की ये K टाइप के एंटीजन से बनी हुई है. Then you can see the inner layer which is known as somatic layer or cell wall. The cell wall of this bacteria it shows presence of O antigen. What is the antigen? Antigen is any foreign molecule invading our immune system and has the stimulatory effect. So that is nothing but antigen. So O antigen is present, specific type of antigen, O antigen is present on the cell wall of this bacteria. Apart from this, this bacteria shows flagella. See here, flagella means this flagella is going to help this bacteria in locomotion. Means this bacteria can move inside our intestine. So this flagella is with H antigen. ये flagella के पास H type के antigen होता है. Okay, so this O and H antigen they are harmful to our immune system. Okay, and hence this bacteria becomes dangerous. So typhoid, this pathogenicity is due to O antigen.
लिपोपॉलीसैकेराइड। तो ये ओ एंटीजन ये किससे बना है? ये स्ट्रक्चरली इट इज मेड अप ऑफ अ लिपिड एंड अ पॉलीसैकेराइड, मतलब लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का ये मिक्सचर है विच इज नोन एज लिपोपॉलीसैकेराइड LPS, present on the surface coat, whereas the flagella contains H antigen. Right now we have seen the flagella shows presence of H antigen and the cell wall shows presence of O antigen. Signs and symptoms of typhoid. Typhoid के signs है prolonged fever as high as 104 degree Fahrenheit. You know this conversions Fahrenheit to Celsius. तो वो इजी होता है कन्वर्जन करना. 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इट इज अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री सेल्सियस. 40 डिग्री सेल्सियस तक फीवर हो सकता है. प्रोलॉन्ग लॉन्ग काफी टाइम तक रहेगा फीवर, प्रोलॉन्ग फीवर. जनरल नोशिया. नोशिया मीन्स द फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग. फटीग मीन्स थकान महसूस होना, वीकनेस. हेडेक. हेडेक इज द मेन कॉज. काफी ज्यादा हेडेक होता है, वेरी सीवियर हेडेक. एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया. कॉन्स्टिपेशन मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल्स इट गेट्स रेड्यूस्ड. जो रेगुलर फ्रीक्वेंसी होती है स्टूल्स की, तो इतना होना रेगुलर एक्सक्रीशन ऑफ स्टूल का, सो इट इज वेरी डेंजरस अगेन. कॉन्स्टिपेशन और डायरिया. रोज कलर्ड रैश ऑन स्किन. स्किन के ऊपर रैशेस आते हैं ना. अलग अलग डिफरेंट पीपल, इंडिविजुअल्स, दे विल शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिम्टम्स. किसी में रैशेस नहीं आएंगे, सिर्फ हेडेक होगा. किसी में ऐसे रैशेस आएंगे स्किन के ऊपर. व्हाइट कोट ऑन टंग एंड कफ. टंग के ऊपर एक व्हाइट लेयर आ जाता है, दैट इज व्हाइट कोट ऑन टंग एंड आल्सो कफ. एनोरेक्सिया, दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट. अब ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा इट इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर जिसमें इंसान को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा मोटा हो जाऊंगा अगर मैं खाना खाऊंगा. तो ये एक टाइप का डिसऑर्डर है विच द पीपल हु आर वेरी मच डाइट कॉन्शियस, जिनको लगता है कि नहीं ज्यादा खाना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं ओबिस हो जाऊंगा, ओबिसिटी हो जाएगी. सो दैट इज अ डिसऑर्डर विच इज नोन एज एनोरेक्सिया. If not treated, breathlessness, irregular heartbeat and hemorrhage. अगर टाइफॉइड ट्रीट ही नहीं किया तो क्या होगा? इट मे रिजल्ट इन ब्रेथलेसनेस. द इंडिविजुअल विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. irregular heartbeat, heartbeat रेगुलर नहीं होना. हार्ट रेट, यू नो वी हैव स्टडीड ऑल दिस. पल्स रेट, हार्ट रेट, रेगुलर हार्टबीट नहीं होना पर सेकेंड, सो इट इज irregular heartbeat. हिमोरेज मतलब क्या है? ब्लड वेसल्स जो होते हैं हमारे थ्रू आउट द बॉडी, यू नो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट. वी स्टडीड ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स, राइट. सो ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाते हैं एंड उसमें से ब्लड लीक होता है. सो सच कंडीशन इज कॉल्ड हिमोरेज, राइट. अगर ये ब्रेन, सपोज ब्रेन में ब्लड वेसल्स है और वो ब्लड वेसल बर्स्ट हो गए तो उसमें से ब्लड will rupture, blood will come out from the blood vessel and उस वजह से clots होते हैं, blood clots brain में. okay, तो वो जो इंडिविजुअल है वो कोमा में भी जा सकता है. so that is hemorrhage, right. so I have explained you the meaning of each and every term. okay, so आपको अगर लगता है कि मैं जो बता रही हूँ वो लिख लेना चाहिए तो पेंसिल रखते चलो हाथ में और यहाँ पे लिखते जाओ जो भी मैं मीनिंग्स बताती हूँ टर्म्स की. ठीक है. तो यह है जनरल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड. इट इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी व्हिच इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. इट इज एन acute infection of intestine and the pathogen shows presence of O antigen and H antigen, and this diagram is very important as it was asked in the board exam. okay, next is mode of transmission. अभी टाइफॉइड कैसे ट्रांसमिट होता है? It is a food and waterborne disease. तो simply देखो contaminated food and water से हो सकता है टाइफॉइड. Insects like housefly and cockroach feeding on fecal matter may transfer the bacteria to food material. तो जो इंसेक्ट्स है जैसे कि हाउस फ्लाई, कॉकरोचेस है, these insects you know they feed anywhere and on any material, and if such insects
if they sit on our food, if we keep the food open, then the typhoid can be transmitted. The typhoid causing bacteria can be multiplied and transmitted. Poor hygiene habits and poor sanitation conditions are responsible for the spread of typhoid. If the poor hygiene is there, अगर आप clean नहीं रहते हो, poor sanitation practice, then it is going to lead to typhoid. So these are the various mode of transmissions. काफी simple है actually, अगर आप ठीक से याद रखोगे तो काफी simple है ये chapter ही overall complete chapter, it is very simple. Chapter vast है लेकिन काफी easy है, ठीक है. लाइफ साइकिल तो जैसे हमने कल पढ़ा था, ये लाइफ साइकिल ये तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है. आप देखो आपकी एक्सरसाइज टेक्स्ट के पीछे, टेक्स्ट एक्सरसाइज में तो नहीं पूछा गया है लाइफ साइकिल किसी भी डिसीज का. सिर्फ मलेरिया का इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो पहले भी पूछा जाता था, इसलिए मलेरिया का लाइफ साइकिल बस पढ़ लो. बाकी तो इंसेक्ट्स का, ये जो इन्फेक्शियस एजेंट्स है उनका लाइफ साइकिल अभी तो पूछा नहीं है, पता नहीं अभी इस टाइम आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो पता नहीं, वी डोंट नो. बट कीप ऑन रीडिंग दिस, ठीक है. नहीं पूछे जाएंगे ऐसे, एक्चुअली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस. इंपॉर्टेंट क्या है मैंने बताया था, इन्फेक्शियस एजेंट, डिसीज का नेम एंड प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट दैट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड साइंस एंड सिम्टम्स. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नाउ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट है. टाइफॉइड का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, बाय अ वेरी फेमस टेस्ट विच इज नोन एज विडाल टेस्ट. WIDAL, Vidal test is used for the diagnosis of typhoid, ठीक है. तो ये विडाल टेस्ट में क्या होता है, विडाल टेस्ट में एक्चुअली हमारी बॉडी में चेक किया जाता है कि एंटीबॉडी O एंड एंटीबॉडी H इज प्रेजेंट और नॉट. डू यू रिमेम्बर वी स्टडीड द फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज, अग्लूटिनेशन, ऑप्सोनिसेशन, न्यूट्रलाइजेशन, याद है आपको. अग्लूटिनेशन, it is one of the function of antibody. agglutination में क्या होता है, clumping the antibodies, they actually form a coating around the clumps, they actually form a coating around the antigen. So Vidal test में यही चेक किया जाता है कि agglutinized bodies कहाँ मिल रही है, and the agglutinized bodies, do they contain antibodies. अभी सपोज यहाँ पे O एंटीजन है, तो O एंटीजन इज गोइंग टू फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, हमने पढ़ा था ये. तो O एंटीजन तो बाहर से आया है, बैक्टीरिया से आया है, तो उसके साथ फाइट करने के लिए हमारे बॉडी में बनेगा O एंटीबॉडी. सो जब O एंटीबॉडी डिटेक्ट होगा हमारी बॉडी में, इसका मतलब है कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड. आर यू गेटिंग दिस? हाँ, जिन्होंने प्रॉपरली स्टडी किया है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, उन्हें समझ में आता होगा जो मैं अभी बता रही हूँ. Yes, ma'am. Treatment of typhoid involves surgical removal of gallbladder in severe cases. अभी जिनकी सीवियर केस है, मतलब ज्यादा बहुत दिन हो चुके हैं, टाइफाइड हो गया है और कुछ बॉडी रिएक्ट ही नहीं कर रही, तो उस केस में क्या किया जाता है, गॉल ब्लैडर होता है, पता है लिवर के पास होता है, छोटा सा एक ऑर्गन होता है गॉल ब्लैडर, जो बाइल जूस सीक्रेट करता है गॉल ब्लैडर. सो वो ही निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है. क्यों? क्योंकि गॉल ब्लैडर में ये जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी, ये मल्टीप्लाई होता है गॉल ब्लैडर में, इसीलिए वो फिर रिमूव किया जाता है सीवियर केस में. एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरोमाइसिटीन इज हेल्पफुल इन ट्रीटमेंट. तो जैसे कि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में हम पढ़ते हैं कि कौन से मेडिसिन ड्रग्स यूज किए जाते हैं टू ट्रीट द डिसीज. सो टू ट्रीट टाइफॉइड, क्लोरोमाइसिटीन इज हेल्पफुल इन ट्रीटमेंट. For prevention of typhoid, WHO recommends 2 vaccines as oral and injectable. तो टाइफॉइड प्रिवेंट करना है तो वैक्सीन्स भी लिए जाते हैं बचपन में, छोटे बच्चों को दिए जाते हैं वैक्सीन्स. So for prevention of typhoid, WHO recommends 2 types of vaccines. एक है oral vaccine, जैसे कि पोलियो वैक्सीन, it is oral, it is given orally, right? डोज दिया जाता है. Similarly, TY21A vaccine is the oral vaccine of typhoid, and दूसरा injectable through the agency of injection. It is injected in the body. The name is typhoid polysaccharide vaccine, sold as Typhim VI and
टाइफिरेक्स, तो ये इसके नेम से, इस नेम से ये वैक्सीन सोल्ड की जाती है। तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था सिंपल एक छोटा सा पार्ट रिगार्डिंग टाइफॉइड। टाइफॉइड का ये जो जो भी कुछ मैंने आपको फोकस करने बोला है वो अंडरलाइन करते जाओ, इसका मतलब उस डिसीज में आपको वही चीजें याद रखनी होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे बोल दिया है मैंने कि डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो ये एक बार ड्रॉ करके देख लो और दिमाग में फिट कर दो एक ही बार कि टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी का ये डायग्राम ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज निमोनिया, नेक्स्ट डिसीज डिसऑर्डर इज निमोनिया। Pneumonia is an inflammatory conditions of lungs or alveoli of lungs. तो pneumonia क्या है? It is again an inflammatory condition जिसमें it is related to lungs and alveoli. Alveoli, it is a part of lungs itself. Okay, lungs get swollen, inflamed, infection की वजह से pneumonia. It is nothing but pneumonia. It is caused by a variety of pathogens. अभी जो pneumonia है, it can be caused due to a variety of pathogens. Single pathogen नहीं है यहाँ पे, variety है. कौन से है? Let's see. Which may be virus like influenza virus, adenovirus, parainfluenza, and respiratory syncytial virus or bacteria like. So pneumonia can be caused due to a virus or it can be caused due to a bacteria. वायरस, अगर वायरल निमोनिया है तो किस वजह से होगा? इन्फ्लुएंजा वायरस, अडीनो वायरस, प्लीज डू अंडरलाइन दिस नेम्स, पैरा इन्फ्लुएंजा एंड रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, RSV। ये आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, व्हाट इज RSV, सो यू शुड बी एबल टू टेल। रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस which can cause pneumonia, or bacteria like Streptococcus pneumoniae. So do remember this. Pneumonia जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उसका नेम है Streptococcus pneumoniae, और फंगल पैथोजेंस एग्जांपल Pneumocystis jirovecii. Underline this, Pneumocystis jirovecii. It can be caused due to a fungal pathogen, and Pneumocystis carinii. ठीक है, तो pneumonia can be caused due to virus, due to a bacteria, and can also be caused due to fungus. Pneumonia, at least you should remember one names, like virus में you can remember influenza virus or RSV. Bacteria में remember this name is important, Streptococcus pneumoniae. Pneumonia can also be caused by chemical burns or physical injury to lungs. तो lungs को अगर कोई injury हुई है, so that can also lead to pneumonia. अगर पहले से कुछ इंजुरी हुआ है लंग्स को. Now signs and symptoms. Cough produces yellow or greenish sputum or phlegm. Okay. Now इन दो वर्ड्स का मीनिंग क्या है? कफ तो सभी को पता है, सभी ने देखा है, सभी ने एक्सपीरियंस भी किया है कफ कैसे होता है. Actually it is a mucus, very sticky mucus, that is cough, which is yellowish or greenish in color. Okay. Sputum means थूक, in short. जो स्पिट, हम स्पिट करते हैं ना, तो दैट इज सलाइवा, वी स्पिट सलाइवा, सो दैट सलाइवा इज कॉल्ड स्पुटम. और फेलेम, फेलेम मीन्स कफ, राइट. जैसे जिनको काफी सारा कफ का प्रॉब्लम है और सर्दी होती है तो उन लोगों में प्रोड्यूस होता है, देखो, येलो कलर्ड म्यूकस अलोंग विथ कफ. ओके, दे स्पिट आउट, सो दैट इज नोन एज फेलेम, फेलेम और स्पुटम. ठीक है. नेक्स्ट इज हाई फीवर, shortness of breath, it is known as dyspnea, shortness of breath, not able to breathe properly क्योंकि lungs are affected, how they will be able to breathe. Chest pain during deep breath or coughing. Okay, deep जब breathing कर रहे हैं तो chest pain होता है क्योंकि lungs ही inflamed है. कफ और coughing, जब भी खांसी आती है तो chest pain होता है. Loss of appetite, again भूख नहीं लगती. Fatigue, weakness, headache, vomiting, joint pain and muscle aches, right? So देखो, जब हर एक डिसीज के आप साइंस एंड सिम्टम्स पढ़ोगे, याद रखोगे, तो जो मेन स्पेसिफिक सिम्टम्स है वो आप याद रखो. बाकी ये तो सारे कॉमन है, अगर आप प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करो तो लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग, हेडेक, वॉमिटिंग, दीज आर कॉमन सिम्टम्स. ओके, इन जनरल सिम्टम्स. लेकिन जब कोई आप स्पेसिफिक डिसीज के बारे में लिखते हो तो आपको स्पेसिफिक
उसका सिम्टम है वो याद रखना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जामिनर यही चेक करता है कि वो बच्चा बस फेंक रहा है आंसर, यहाँ के वहां, यहाँ वहां का यहाँ, या एक्चुअल में उसने स्टडी किया है और उसे याद है कि इस पर्टिकुलर डिजीज का सिम्टम क्या है। तो ऐसे भी आपको एग्जामिन किया जाता है इस बेसिस पे भी, ठीक है। नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ निमोनिया, निमोनिया कैसे ट्रांसमिट होता है? Pneumonia mostly spreads by direct person-to-person contact. Yes, it can also spread via droplets released by infected person or even by using shared clothes or utensils. So, agar if another person, healthy person, comes in contact with the droplets, saliva droplets from the infected person, the healthy person can get affected. Like you know, अभी जिनको भी pneumonia होता है, they are very much, they are on a high chances of getting coronavirus also, because both are affecting, both the types of virus, pneumonial virus or bacteria and coronavirus, they are affecting the respiratory system, and hence the people, they are not able to breathe, और अगर breathe ही नहीं कर पाए, hence फिर इसीलिए वही ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाता उनको. If there is no oxygen, how your each and every organ will work without oxygen, and hence फिर ventilator use किया जाता है. We have studied about ventilator also. Okay, so likewise, so it is a very harmful disease actually, pneumonia. Diagnosis and treatment, कैसे diagnose किया जाता है? Course of treatment depends upon pathogen leading to the disease. Now इसका depends कि किस पैथोजन की वजह से हुआ है निमोनिया, वायरल निमोनिया है या बैक्टीरियल निमोनिया है, अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट चेंज होगा. फॉर बैक्टीरियल निमोनिया, एंटीबायोटिक्स लाइक बेंजाइल, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन एंड क्लोरोएम्पीफेनिकॉल आर इफेक्टिव. तो अगर निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से हुआ है, बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे ट्रीटमेंट. एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ antibiotic, right? Penicillin was discovered by Alexander Fleming, right? काफी important पेनिसिलिन के बारे में आप पढ़ते हो बचपन से ही, एंटीबायोटिक है. Then next is ampicillin, it is also a type of antibiotic, and chloroamphenicol. So for this you can remember these two names, penicillin and ampicillin. These are easy to remember, right? Okay, so प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. फिर यहाँ पे देखो इन्होंने बताया है अडीनो वायरस, डायग्राम्स बताए हैं. So it might be asked for 2 marks, so please don't ignore such diagrams. जैसे सैल्मोनेला टाइफी का पूछा गया था, इस बार निमोनिया का भी पूछा जा सकता है. This is adenovirus, this is Legionella pneumophila, Streptococcus pneumoniae, this is a bacteria causing pneumonia, and this is a mold which is a fungus which causes pneumonia. So to remember the diagrams and the names. Next is prevention and control. कैसे prevent कर सकते हैं हम निमोनिया को? Vaccination is important. Prevention in both children and adults. Vaccine can prevent us. Vaccines against Haemophilus influenzae and Streptococcus pneumoniae in first years of life help greatly to reduce the chances of causing. तो अगर बचपन में ही वैक्सीन दिया जाए बच्चों को अगेंस्ट हीमोफीलिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, then that individual will be less prone to suffer from pneumonia. So this is about pneumonia. So today we studied first about typhoid and second we studied about pneumonia. So let's move ahead without wasting any time. Next, this disease is common cold. ये हमने last lecture में ही देखा, Saturday we studied about this. काफी छोटा part था, so we completed. Next is ringworm. दिस इज ऑल्सो नोन एज डर्मेटोफाइटोसिस. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड्स में. व्हाट इज डर्मेटोफाइटोसिस? सो यू हैव टू रिमेम्बर डर्मेटोफाइटोसिस. जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ये क्या है, कभी सुना ही नहीं है, लेकिन ये आपकी टेक्स्ट में ही होता है, जिसका कॉमन नेम है रिंगवर्म. रिंगवर्म सभी को पता है, एडवर्टाइज आती है, यूज अ रिंग गार्ड, इच गार्ड. तो वहां पे उस एडवर्टाइज में दिखाते हैं कि क्या एक्चुअल में होता है, ठीक है. साइंस एंड सिम्टम्स, रेडनेस एंड एवरीथिंग, कैसे इन्फेक्ट, इट इज एक्चुअली इन्फेक्शन ऑफ स्किन, राइट? फंगल इन्फेक्शन होता है रिंगवर्म. So you have seen the advertisement, so you know well how it looks. Okay, so ringworm, इसका दूसरा नेम है डर्मेटो. डर्मा means it is related to skin. Okay, dermatophytosis.
It is a fungal infection of skin. It is caused by many fungal species belonging to the genera Trichophyton and Microsporum. तो ये दो जीनस है, ये फंगस के दो जीनस है. जीनस के बाद फिर स्पीशीज होते हैं इनके अलग अलग स्पीशीज. तो मेन जो जीनस नेम्स है वो दिए गए हैं ट्राइकोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम. एक स्पीशीज है माइक्रोस्पोरम एंड्यूनी. It is a fungal species which can cause ringworm. These fungi feed on keratin in the skin, hair and nails. तो ये जो फंगस होती है it feeds on keratin. Keratin is a type of protein in our skin, in our hairs and in our nails. तो वो प्रोटीन पे ये फीड होता है ये फंगस. ठीक है. साइंस एंड सिम्टम्स. क्या साइंस एंड सिम्टम्स है? इन्फेक्टेड स्किन शोज एनलार्ज रेड रिंग कॉज ड्यू टू रिंगवर्म. तो जो इन्फेक्टेड स्किन होगी वो एनलार्ज होती है साइज में, रेड कलर की नजर आती है. फॉर एग्जाम्पल हियर सी द डायग्राम. डायग्राम से आपको क्लियर होता है कि एक्चुअल में क्या है. द फंगस लीव्स ऑन द डेड टिश्यू ऑफ द स्किन. सी दिस इज हाउ द फंगस लुक्स लाइक. ये हमें ऐसे विद अ नेकेड आइज वी कांट सी दिस, अंडर माइक्रोस्कोप ऐसे स्ट्रक्चर होता है फंगस का. Fungal hyphae, you can see ringworm lesions. Lesions are formed. So this is how the infection. Usually fingers के बीच में भी होता है जो space होती है, toes के बीच. Okay. So likewise. Remember, infected shows enlarged ring caused due to ringworm. Appearance of dry scaly lesions on various parts of the body. These red patches cause इंटेंस इचिंग. इचिंग होता है बार बार, यू नो, जलन होती है, खुजली होती है ज्यादातर. ओके, दैट इज इचिंग. इन्फेक्शन टू नेल्स इज टर्म्ड एज, यस प्लीज डू अंडरलाइन दिस, ये अलग टर्म है, ऑन्कोमाइकोसिस. ऑन्कोमाइकोसिस मीन्स व्हेन दिस इन्फेक्शन इज it occurs on the nails get infected. In nails which become thick, discolored and disfigured. nails में जब ये infection होता है तो nails थिक बन जाते हैं. यूजुअली हमारे नेल्स थिन होते, पतले होते, ज्यादा मोटे नेल्स नहीं होते. सो नेल्स बिकम थिक, डिसकलर्ड. नेल्स पे एक नेचुरल शाइन होता है वो निकल जाता है. एंड डिसफिगर्ड, प्रॉपर नेल्स नहीं होते, कैसे भी ग्रो होते हैं, आड़े मेढ़े टेढ़े. लाइकवाइज because of this infection, a fungal infection which is known as onychomycosis. Athlete's foot, this is this is asked many times in NEET के questions में होता है ये. Athlete's foot is the fungal infection that usually begins between the toes. तो you know athlete means जो athlete usually जो जैसे जो रनिंग करता है, स्पोर्ट्स में है एक्चुअली. ओके, सो यू नो, तो वो जब शूज वेयर करते हैं तो बिकॉज ऑफ स्वेटिंग कंटिन्यूअस फंगल इन्फेक्शन होता है उनमें. लाइक हो सकता है ये रिंगवर्म के जैसे. कॉम्बिनेशन बोला गया है एथलीट्स फुट. इसमें क्या होता है, टोस के बीच में, दो टोस के बीच में जो स्पेस है वहां पे ये फंगल इन्फेक्शन होता है. हेंस इट इज नोन एज एथलीट्स फुट, कॉमन नेम. ठीक है, तो ये हो गए साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ रिंगवर्म व्हिच इज नोन एज डर्मेटोफाइटोसिस. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिट होता है? रिंगवर्म स्प्रेड्स बाय शेयरिंग क्लोथ्स. फंगल इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, स्किन रिलेटेड है, तो अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के सॉक्स पहनोगे, क्लोथ्स पहनोगे, टी शर्ट वगैरह जो भी है, तो उससे आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है. Ringworm spreads by sharing of clothes. Comb. See, even when many people they have habit of using others comb, so it is a very bad habit actually. ये जो होता है ना dandruff is also a type of fungus, right? So hence अगर आप किसी का comb भी share करते हो तो there are chances कि वो fungal spores आपके hair में आके वो grow होने लगे. So it is a bad habit to use others materials. Close contact with infected person is another mode of infection, right? So ये simple mode of infection you can remember. Next is diagnosis and treatment. Diagnosis by physical examination and treatment uses drugs like nystatin, fluconazole, intraconazole. So at least one name remember. ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन यानी देखते ही डॉक्टर बता देगा कि ये इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है.
ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, क्या प्रिवेंट करोगे? अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, लाइक यू नो क्रिकेट खेलने जाते हैं बॉयज, तो आपके क्रिकेट के वो जो होते हैं इक्विपमेंट्स, तो आप वो शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि it might happen that your friend is suffering from ringworm and you are using same equipment, so there are chances that you can also suffer. Washing clothes in hot water with fungicidal soap help to destroy fungal पैथोजन। ये तो हम सभी करते हैं, वी यूज सोप टू वॉश क्लोथ्स, राइट? सिर्फ पानी से हम नहीं धोते कपड़े, राइट? ओके, सो ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ डिसीज, रिंग वर्म, डर्मेटोफाइटोसिस। नाउ यू टेल मी, इज इट डिफिकल्ट? क्या ये चैप्टर डिफिकल्ट है? काफी सिंपल है, आई थिंक इट इज सिंपल, आई डोंट नो व्हाट अबाउट यू पीपल, you read it and then you will understand it is very much easier actually। बस क्या हमें मेन इन्फेक्शियस एजेंट का नाम याद रखना है और उसका ट्रीटमेंट, बाकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यू कैन रिमेम्बर इजीली, राइट? वी आर फॉलोइंग गुड hygienic practices, so yes, it is very easy for us to write down the answers, so it is a very much scoring chapter और ये पूरा complete chapter है आपको, no part is deleted from this chapter, so you have good chance of scoring in this chapter। ठीक है, is it clear? Yes. So we studied about ringworm. Now next एक छोटा सा पार्ट है डेंगू, कॉमन, वेरी कॉमन, राइट? अभी 1-2-3 साल पहले काफी सारा रेनी सीजन के टाइम में काफी many people used to suffer from dengue, right? Dengue fever is a painful, debilitating vector borne disease। डेंगू इज अ पेनफुल, debilitating means वो जो पेशेंट है सफर करता है डेंगू से पूरा वीक हो जाता है। जिनको हो चुका है या फिर आपको पता होगा कि आपके अगर फैमिली में किसी को हो चुका है डेंगू, सो यू मस्ट हैव सीन द पीपल, ज्यादा एकदम हेल्दी पर्सन भी पूरा वीक हो जाता है, वीकनेस फील करता है, थकान महसूस होती है। थकान मीन्स debilitating, weakness। वेक्टर बॉर्न डिसीज, वेक्टर बॉर्न है मीन्स यहाँ पे कोई वेक्टर होगा, पता है किस वजह से होता है डेंगू? क्यों होता है डेंगू? वेक्टर बॉर्न है, विच वे? Yes, mosquito. Yes, very good. Hence, it is a vector-borne disease caused by any one of 4 closely related dengue virus. तो एक्चुअली एक वायरस होता है डेंगू वायरस, DENV, डेनवी, dengue virus। Okay, this virus, it is going to first attack a mosquito and then that mosquito will act as a vector and transmit the virus in human beings। Okay, just like malaria। लेकिन यहाँ पे जो मस्कीटो है वो स्पेसिफिक है, राइट? जैसे मलेरिया में देखो मस्कीटोज के अलग अलग जीनस होते हैं। मस्कीटो इट इज अ टाइप ऑफ, इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा, राइट? क्लास इंसेक्टा, उसका ऑर्डर आता है डिप्टेरा एंड अंडर दैट देयर आर डिफरेंट जीनस। जैसे हमने पढ़ा था एनोफिलस, एनोफिलस मस्कीटो इज रिलेटेड टू विच डिसीज? बोलो, मलेरिया। मलेरिया। उसके बाद फिर हमने देखा था क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मस्कीटो इज रिलेटेड टू विच डिसीज? क्यूलेक्स मस्कीटो, बोलो, देखो याद करो, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्यूलेक्स मस्कीटो रिलेटेड डिसीज। एनीवन? यस, क्विकली, क्यूलेक्स मस्कीटो। ओपन पेज नंबर 232, पेज नंबर 232, fourth line from the top, fourth line from the top। now answer, अभी तो मैंने बता दिया किस पेज पे है। now tell me the disease name, disease name caused due to Culex mosquito। Filariasis, 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 filariasis or the elephantiasis due to the mosquito Culex। Culex is a type genus of mosquito। similarly अभी उसी तरह dengue is a viral disease and it is transmitted through the bite of a female एडिस मस्कीटो। तो जब जो भी हमने अभी तक मस्कीटोज पढ़े सारे फीमेल मस्कीटोज है और वो सारे फीमेल मस्कीटोज डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेंगू कॉजिंग कौन सा है? तो ये नेम आपको याद रखना जरूरी है, जीनस इज एडिस, एडिस मस्कीटो, AEDES। The mosquito takes up the dengue virus when it sucks the blood of a person suffering from dengue।
तो अगर किसी पर्सन को डेंगू हो चुका है ऑलरेडी, तो उसकी बॉडी में डेंगू वायरस है, और अगर ये एडिस मस्कीटो उस पर्सन को बाइट करती है, एंड इफ दैट मस्कीटो सक्स द ब्लड from the infected person, so the mosquito will now carry that virus and it is going to transmit that virus to another person. It cannot spread directly from one person to another. Yes, as it is a vector borne disease, without a mosquito this disease is not going to spread. Okay, so dengue, very small part is given about dengue. ठीक है, बस आपको याद रखना है ये नेम वेक्टर बॉर्न डिसीज है, एंड द वेक्टर इज एडिस मस्कीटो, फीमेल. ओके, नेक्स्ट, very, you can say very much expensive, very much, you can say कि काफी कम चांसेस है ट्रीटमेंट के, कैंसर. ठीक है, आजकल काफी एक्टर्स, यू नो, मेनी ऑफ आर बॉलीवुड एक्टर्स, सो दे हैव सफर्ड फ्रॉम कैंसर, राइट. काफी लोगों को होता है अब ये कॉमनली कैंसर. तो क्या है कैंसर? ठीक है, सो सी, abnormal, uncontrolled and purposeless division of cells. See, आपको कोई पूछता है कि कैंसर मतलब क्या है, तो you should be answer like this. कैंसर में क्या होता है? abnormal growth, uncontrolled growth, purposeless division of cells. You know, हमारी बॉडी में सेल डिविजन होता है, माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है. माइटोसिस कौन से सेल्स में होता है बॉडी के? बोलो जल्दी आंसर दो, कॉमन क्वेश्चन. सोमैटिक सेल. हाँ, बॉडी, हमारी बॉडी में जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स होते हैं, उनमें होता है माइटोसिस, राइट. तो माइटोसिस में क्या होता है? वन सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल्स, टू सेल्स फर्दर डिवाइड टू फॉर्म फोर सेल्स. लेकिन जब ये सेल डिविजन अनकंट्रोल्ड हो जाता है, पर्पसलेस, पर्पस ही नहीं है सेल डिवाइड होने की, फिर भी हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली सेल डिविजन हो रहा है, देन इट इज गोइंग टू लीड टू कैंसर. एक्चुअली cell, the division of cells may lead to the formation or development of a mass of undifferentiated cells. ठीक है, तो अगर ऐसे कंटिन्यूअसली सेल्स डिवाइड होते रहे तो एक मास बनेगा, एक बल्क बनेगा, बल्क ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, एंड दैट इज ट्यूमर. सो इट इज नोन एज ट्यूमर. ट्यूमर क्या होता है? आपने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर. तो ट्यूमर एक्चुअली, व्हाट इज ट्यूमर? ट्यूमर इज नथिंग बट अ मास ऑफ सेल्स. काफी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से जो प्रोड्यूस होता है मास, इट टुगेदर इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ दैट सेल्स व्हिच इज नोन एज अ ट्यूमर. When tumor is malignant, it is described as cancer and has ability to invade other tissues. अभी इसमें भी दो टाइप्स दिए यहाँ पे, बेनिंग एंड मैलिग्नेंट. ठीक है, तो जो भी कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं उसे बोला जाता है मैलिग्नेंट. प्लीज अंडरलाइन एंड रिमेंबर, when tumor is malignant it is described as cancer and has ability to invade other tissues. तो अगर malignant growth है cells की, इसका मतलब that person is suffering from cancer and there are chances that his other body parts, tissues may get damaged. ठीक है, because of this uncontrolled growth. Cancer harms the body when cancerous cells divide uncontrollably to form new lumps or masses of tissue called neoplasm. ठीक है, तो कैंसर हमारी बॉडी को हार्म कैसे करता है? जब ये जो कैंसरस सेल्स है, मैलिग्नेंट सेल्स है, इनकी अनकंट्रोलेबल डिवीजन होती रहती है बॉडी में और लम्प्स बनते हैं. तो अगर आपकी बॉडी में लम्प्स बनते जाए, ठीक है, तो बॉडी में इतना सरफेस एरिया प्रेजेंट ही नहीं है कि उस लम्प्स को जगह मिल पाए. तो थ्रू आउट द बॉडी अगर पूरे लम्प्स बन जाए तो पूरा आपका बॉडी ब्लॉक हो जाएगा ना. लिम्फेटिक सिस्टम, आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका कोई ऑर्गन है टिश्यू में, ब्रेन में अगर होता है तो ब्रेन में वहां पे अगर ट्यूमर्स बन जाते हैं तो यू नो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल, सो ब्रेन डज नॉट हैव अ एरिया टू एक्सपांड, राइट. तो फिर इट इज सो लाइकवाइज, सो दिस अनकंट्रोलेबल कैंसर कोई इन्फेक्शियस डिसीज नहीं है. अगर कोई किसी कैंसर पेशेंट के आप कांटेक्ट में आ जाए तो आपको कैंसर नहीं होता. ये क्यों होता है? ये स्पेसिफिक पर्सन टू पर्सन ये उसकी
डिसऑर्डर है, सेल्स डिवाइड अनकंट्रोलेबली, right? This is the reason of cancer. Remember, there is formation of lumps of masses or tissue which are called neoplasm. तो जो lumps बनते हैं इसको ट्यूमर भी बोला जाता है, और remember this another word neoplasm. Tumors can grow and interfere with the normal functioning of various organs. तो ये जो ट्यूमर्स है ये क्या करते हैं, कैंसरस सेल्स हमारे जो बाकी सेल्स है जो इम्पोर्टेंट है उनमें से न्यूट्रिशन पूरा ले लेते हैं. दे एक्चुअली एक्ट लाइक अ पैरासाइट. दे take up all the nutrition nourishment from our body cells. Okay, tumors can grow and interfere with the normal functioning of various organs. They also release secretions which alter body functions. तो ये जो malignant cells है वो कुछ टाइप के secretions भी secrete करेंगे जिससे हमारा body function alter हो जाएगा. It is one of the main killer diseases nowadays. Yes, cancer is one of the main killer disease nowadays. Physicians and researchers who specialize in the study, diagnosis, treatment and prevention of cancer are called oncologist. तो जो लोग कैंसर की स्टडी करते हैं, स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, so that those people who do specialization in cancer, treating cancer, are known as oncologist. जैसे जो आंखों का स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. उसी तरह कैंसर से स्टडी रिलेटेड है ऑन्कोलॉजिस्ट. ट्यूमर्स में डेवलप एनीवेयर इन द बॉडी. ट्यूमर्स कहीं भी बन सकते हैं बॉडी में. हाउएवर ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरस. अभी ये भी चीज समझनी जरूरी है कि सारे ट्यूमर्स कैंसरस नहीं होते, सारे ट्यूमर्स मैलिग्नेंट नहीं होते. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, बेनिंग और नॉन मैलिग्नेंट एंड कैंसरस और मैलिग्नेंट. इसका मतलब क्या है, दो टाइप के ट्यूमर्स हो सकते हैं. एक तो नॉन कैंसरस हो सकता है, नॉन मैलिग्नेंट, जिसे बोला जाता है बेनिंग, BENIGN, बेनिंग. और दूसरा है वो कैंसरस हो सकता है, दैट इज मैलिग्नेंट. ठीक है, बाकी डिटेल हम कल देखेंगे इसके बारे में. आज हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, व्हाट इज कैंसर एंड व्हाई इट कॉजेस ट्यूमर. दिस ट्यूमर्स कैन बी बेनिंग और दिस ट्यूमर्स कैन बी मैलिग्नेंट. अगर बेनिंग है, नॉन कैंसरस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कैंसरस है देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है, तो एंड ये रिमेंबर दिस टर्म, what is oncology or oncologist, can be asked for 1 mark. So remember this, oncologist related to cancer. Is it clear to you? Yes, everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we studied typhoid, pneumonia, ringworm, dengue, we started cancer. 5 चीजें आज हमने पढ़ ली है. ठीक है, now take down your homework. On Wednesday, yes, Wednesday you have bio test. You know this? Yes, ma'am. हाँ, कौन से लेसन की टेस्ट है? Reproduction in animals. Production in animals. So start preparing. Today is Monday, tomorrow Tuesday, and on Wednesday you have test. So it's not like कि Wednesday को आप study करें या कल study करना शुरू करें. Start right from today. Yes, tomorrow you don't have any test. सही है ना? आज टेस्ट था आपका, कल टेस्ट नहीं होगा आपको, तो Yes, ma'am. प्रिपेयर नहीं है. करो. लेसन नंबर 2 जो है वो प्रिपेयर करो अच्छे से. और जो भी आप सेंड करते हो सारे लोगों को, ऑल स्टूडेंट्स, यू हैव टू सबमिट योर पेपर्स ऑन टाइम. क्योंकि जब आप लेट सबमिट करते हो तो वहां पे आता है, नोट आता है सबमिटेड लेट. ठीक है, तो रिमेम्बर, जितना आपको टाइम दिया है सुबह 10 बजे से 3 बजे तक, तो आपको सेंड करना है उसी टाइम में. ठीक है, समझ रहा है सभी को? और लर्न Yes, ma'am. करके आप लिखो आंसर. जस्ट डोंट गिव लाइक देख के लिखा तो कोई मतलब नहीं बनता उसका. जो भी है ऑनेस्टली आप वो सेंड करो और पीडीएफ बनाओ. ठीक है, डोंट सेंड इमेजेस. जो आप होमवर्क भी करते हो ना उसका पीडीएफ फाइल बना के अपलोड करो, सो दैट इट विल बिकम इजी टू चेक. ठीक है, tomorrow you'll get marks of your first test. Okay, are you getting? Yes. Take down homework. Take down today's homework.
सी नाउ ये टेबल आप कर दो. क्वेश्चन नंबर 5 यू कैन डू. देन क्वेश्चन नंबर 6 में से देखो आपने ये कर दिया है ऑलरेडी. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, व्हाट इज वैक्सीनेशन, राइट अ नोट ऑन वैक्सीनेशन. दिस ऑल्सो हैव डन. ये आप कल करोगे, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है. डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ये भी हमने कर दिया है. तो जिन्होंने नहीं लिखे हैं आंसर्स तो वो लिख दो, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. Then write a short note on typhoid. See, this you can do today for homework. What measures would you take to prevent waterborne disease? ये कॉमन छोटा 5th-6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी लिख देगा, तो ये आप लिख लो. ठीक है. How does the transmission of each of the following disease takes place? देखो यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे पूछा गया, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आएंगे बोर्ड में भी. बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे. ट्रांसमिशन पूछा जाएगा, डिसीजेस के जाएंगे, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है. राइट अ नोट ऑन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये मैंने दिया था पहले ही होमवर्क के लिए. राइट अ नोट ऑन एंटीजेंस ऑन ब्लड सेल्स, ये वो टेबल है ब्लड ग्रुप्स का, हमने टेबल लिखा था, उसके ऊपर ही क्वेश्चन है. ठीक है. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, how does malaria spread? See, such type of questions are asked and differentiate between B cells and T cells. ये lymphocytes के types हमने देखे थे. So likewise जो भी हमारा कवर हो चुका है उसके ऊपर आप होमवर्क कर दो. व्हाट इज RH फैक्टर, व्हाट इज सिजॉन्ट, इट इज रिलेटेड टू मलेरियल पैरासाइट, राइट. सो लाइकवाइज ये सारे क्वेश्चंस आप करते चलो जैसे जैसे हम टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं हर एक. तो आपका पूरा एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ दिस लेसन पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. इज इट क्लियर टू यू? सो दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू टुमारो. ओके, चलो बाय. बाय मैम. Okay, ma'am. बाय. Thank you, ma'am. Yes, welcome. Bye.